Assalamualaikum, students of class 6. How are you all, students? Students, it is my lecture number 21, and you know that we are studying chapter number 4, that is different kinds of material. In this chapter, we have started to study about the properties of matter. I have provided you the list of properties of matter. From these properties, we have discussed about the appearance, texture, luster, hardness, solubility. Okay, students, we have discussed all these properties in detail. Now today we are going towards the next property. Okay, that is the property of transparency. Okay, students, we are moving towards the property of transparency. Now, transparency. What is meant by the transparency and what is the transparency? If a substance or material is transparent, you can see through them. We can see through a substance only when light can pass through it. Therefore, materials on this basis can be classified into three categories: transparent, translucent, and opaque. Okay, students, I have studied this para from your book. Okay, by it, I can define the transparency in this way: that transparency is that property of the matter through which we can see through the substance. Okay, we can see through the substance. That is the property of that substance, that is called as the ट्रांसपेरेंसी. एंड ट्रांसपेरेंसी किसी मटेरियल की, किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम उसके आर पार देख सकते हैं, ठीक है, या पार्शियली देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, ठीक है. तीनों ऑप्शन है इसमें कि या तो हम कोई सब्सटेंस है लाइक ग्लास, ठीक है, ग्लास है तो उसके आर पार हम देख लेंगे. ग्लास अगर डिज़ाइन है तो हम उसका बिल्कुल कंप्लीटली नहीं देख पाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे. लाइक इफ देयर इज द ब्लैक ग्लास, ठीक है ना, ब्लैक मिरर है, ब्लैक ग्लास है, ठीक है, तो उसके हम बिल्कुल आर पार उसके एक साइड से देख पाएंगे, दूसरी साइड से हमें नज़र नहीं आएगा. लाइक इफ़ यू टेक दिस सिंपल एग्जांपल ऑफ वुड की एग्जांपल है आपके पास, तो उसको आप जो है देख ही नहीं पाएंगे उसके पास, उसके आर पार, ठीक है. तो ट्रांसपेरेंसी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल थ्रू व्हिच वी कैन सी द सब्सटेंसेस, ठीक है, वी कैन सी द सब्सटेंसेस नियर ऑफ इट, ठीक है ना. इसकी जो आसपास चीजें हैं, हर एक जो चीजें हैं उसके थ्रू हम देख सकते हैं, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी द सब्सटेंस आर ऑफ थ्री टाइप्स, ठीक है. ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी बेस पे तीन टाइप्स के सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमें ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस मिलते हैं. नंबर 1 इज कॉल्ड एज द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस. नंबर 1 इज द transparent substances. Number 2 is the translucent substances. Okay. Number 3 is the opaque substances. It means on the basis of transparency, यानी जो चीज़ों के आर पार देखने की जो एबिलिटी है मैटर की, जो प्रॉपर्टी है, उसकी बेसिस पे हम सब्सटेंसेस को थ्री फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस, translucent substances and the opaque substances. Okay class, now we will move towards the transparent substances, ठीक है. ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस क्या होते हैं, अब हम इसकी तरफ देखते हैं. नंबर 1 ट्रांसपेरेंट.
through which we can see clearly and light can pass through them easily are called as the transparent substances. There are two properties of the transparent substances. We can see through them. ठीक है, we can see through them clearly. ठीक है, we can see through them clearly. The other property that all light can pass through it. Okay, through the transparent substances, all the light which is falling over the material, it will pass through it, and we can see clearly through it. Okay, यानी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जिनके ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जिनमें से लाइट पूरी पास हो जाती है, और जो है उसमें से हम क्लियरली जो है सब कुछ देख सकते हैं. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल द ग्लास. ठीक है ना, द प्लेन ग्लास, विंडो ग्लास, यू कैन से डोर ग्लास. ठीक है ना, जैसे डोर ग्लास होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम आर पार देख सकते हैं. ठीक है, विंडो ग्लास होता है. ठीक है ना, सो वी कैन सी थ्रू इट. ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक एज द ग्लास ऑफ योर क्लास डोर. ठीक है ना, जो आपकी क्लास का जो डोर होता है, देखें उसका जो गिलास लगा हुआ है, इस पे से लाइट पूरी फुल पास हो जाती है, और उसके आर पार देख सकते हैं. यानी बाहर खड़े होकर क्लास के अंदर देख सकते हैं, क्लास के अंदर खड़े होकर क्लास से बाहर खड़े देख सकते हैं. सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस. नाउ आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस. ओके क्लास, in transparent substances you can see the example of window panes. Water is transparent, we can see through it. Air is the transparent substance. Okay, window panes, water and air are the transparent substances. Okay students, translucent substances. ठीक है, it is the second type which we will study in the topic of transparency. Okay, now what are the translucent substances? Translucent substances are the substances through which we can see partially and light can pass through them partially. ठीक है ना, देखिए according to the definition, these are the substances through which we can see partially. ठीक है ना, कैसे देख सकते हैं हम? We can see partially means थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा नहीं देख सकते हैं. The thing will not be clear, right? And the light will, why? What is the reason? Because the full light will not pass. ठीक है, light will pass through it partially. यानी लाइट जो है वो partially जो है पास होगी. इससे कुछ लाइट पास होगी, कुछ पास नहीं होगी. फॉर एग्जांपल 100% लाइट करें, एज्यूम करें तो 50% पास होगी, 50% पास नहीं होगी, 60% पास होगी, 40% पास नहीं होगी, समथिंग. Right? The full light will not pass through it. So that will be the translucent substances. ठीक है, I'm again repeating, क्या होते हैं translucent substances through which we cannot see clearly. We can see only partially. इन्हें हम बिल्कुल clearly नहीं देख सकते हैं, हम partially देख सकते हैं. ठीक है, क्यों नहीं, क्यों? What is the reason? Because the full light will not pass through it. इनका material ऐसा बना होता है, या इस तरह से डिज़ाइन होते हैं, इस तरह बना होता है ये कि इसमें से हम पूरा कम्प्लीटली नहीं दे सकते. लाइट जो है कम्प्लीटली पास नहीं हो सकती, पार्शियली लाइट पास होती है, जिसकी वजह से हमें पार्शियली सब्सटेंस नज़र आता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल द एग्जांपल्स आई वुड लाइक टू गिव यू द एग्जांपल्स लाइक बटर पेपर इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस. फ्रॉस्टेड ग्लास यानी डिज़ाइनिंग वाला ग्लास. ठीक है, डिज़ाइनिंग वाला शीशा होता है जो विंडोज़ वगैरह पे लगाते हैं या डोर्स पे भी लगता है. फ्रॉस्टेड ग्लास, दैट इज़ कॉल्ड एज द फ्रॉस्टेड ग्लास. दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस. ओके स्टूडेंट्स, ओके क्लास, now we'll move towards the opaque substances. Now what are the opaque substances? Opaque substances are those substances through which no light can pass and one cannot see through them. ठीक है, यानी ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसके थ्रू हम बिल्कुल कुछ नहीं देख सकते. We cannot see. ठीक है, we cannot see through them. Why? Because the light will not pass. ठीक है,
बिल्कुल भी लाइट नॉट पास, लाइट विल नॉट पास, ठीक है, लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है, ठीक है, जरा सी भी लाइट पास नहीं होती है इसमें से, तो उसकी जिसकी वजह से हम दूसरे पार्ट की चीज़ जो है, दूसरी तरफ की जो चीज़ होती है उसको हम नहीं देख सकते, ठीक है। क्लास आई थिंक सिंपल सा है, इसी तो मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। वी कैन नॉट सी थ्रू द सब्सटेंस, इस चीज़ के पार पार हम नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि लाइट पास नहीं होती है। देखिए आपको पता है कि हम चीज़ें जो है लाइट के पास होने की वजह से देखते हैं, लाइट फॉल होने की वजह से देखते हैं, ठीक है ना, लाइट पास होने की वजह से देखते हैं। अब जब लाइट ही पास नहीं होगी तो हम कोई चीज़ दूसरे पार की कैसे देख सकते हैं, ठीक है। एस एग्जाम्पल इज द वॉल, ओके, आई गिव यू मोर एग्जाम्पल, नंबर वन एग्जाम्पल इज द वॉल। द एग्जाम्पल ऑफ ओपेक सब्सटेंसेस इज द वॉल, वॉल दीवार जो होती है वॉल, ठीक है। एंड द अनदर एग्जाम्पल इज द वुड, वी कैन नॉट सी थ्रू इट। वन मोर एग्जाम्पल इज द सैंड, ब्रिक्स, जिसे ब्रिक्स बनती हैं सैंड, ठीक है। अब हमने एग्जाम्पल्स देखे इसकी, वॉल, वुड, सैंड, यानी हर कोई चीज़, ये तो एग्जाम्पल्स हैं, और हर वो चीज़ जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, जिससे लाइट पास नहीं हो सकती, दैट इज द ओपेक सब्सटेंस। Okay students, now we will move towards the homework. For the homework please take a question, ठीक है, note down the question. Question is that give two examples for transparent substances, two examples for translucent substances, and two examples for opaque substances. Okay, again I am repeating the homework. Give two examples for transparent substances, two examples for transparent substances, two examples for translucent substances, and two examples for opaque substances. Okay students, तो आपने ट्रांसपेरेंट की एग्जाम्पल की हेडिंग डाल के, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस की हेडिंग डाल के दो एग्जाम्पल देनी है, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस की हेडिंग डाल के दो एग्जाम्पल देनी है, इसी तरह से ओपेक सब्सटेंसेस की हेडिंग डालकर आपने इसकी टू एग्जाम्पल्स देनी है आपने, ठीक है। सिंपल सा होमवर्क है आपको इसका स्टूडेंट्स, होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ डू द होमवर्क ऑन टाइम, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।